کو پھینک دیا، میں گھبرا گیا، میں بائیں خیمے سے نکل کر آقا کے بھائی کے خیمے میں گیا اور جانے کے بعد کہا میرا آقا رات بھر بے چین رہا، اور میں نے اسے جب پانی پیش کیا تو اس نے کوسا پھینک دیا۔ ارباب ازا ہر کا بھائی ہر کے پاس آیا، آگے کہتا ہے بھیا ارے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ تصور رکھیں، آپ سوچیں، یہ آدھی رات کا منظر ہے، آدھی رات گزر گئی ہے، 19 شب گزر گئی ہے۔ ہر نے اپنے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور حسین کے خیمے کی پشت پر لے کے آیا۔ کہا سنو میری آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں، خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی الاتش کی آوازیں آ رہی ہے۔ آپ ذرا محسوس کریں، حسین کے بچوں کے سینے شدت آتش اتنے جل رہے تھے کہ آدھی رات گزر گئی تھی، حسین کے بچوں کو نیند نہیں آئی تھی۔ یہ اسی ہر کا لاشا ہے جو حسین کے پاس آیا، جس نے اجازت لی، لیکن اجازت لینے کے بعد خود نہیں گیا، اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے بھیجا۔ جوان بیٹے کو بھیجنے لگا، حسین نے کہا ہر اپنے جوان بیٹے کو بھیج رہے ہو؟ عجیب جملہ کہتا ہے، مولا میں نے سیدہ کے قلب کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، میرا لال میرے سامنے مارا جائے تو مجھے احساس ہو جائے کہ بیٹے کے غم میں باپ کا کلیجہ کیسے تڑپتا ہے۔ ہمارا سلام سرکار شہادت حسین کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہار باب ازا ان نے چاہا جنازہ اٹھائے، حسین نے عجیب جملہ کہہ دیا، ان کیا غضب کرتے ہو؟ کہیں جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ اٹھاتا ہے؟ مولا ہر سے تو آپ نے کہہ دیا، کاش آپ سے اس وقت یہ کہتا جب 18 برس کے گڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہے۔ بنی اسد نے یہ جنازہ دفن کیا، پھر گئے میدان میں جانے کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد کہتے ہیں اے سوار ہم 2 لاشیں اور دیکھ کے آئے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن بدن سے دونوں کی کیفیت ایسی لگتی ہے جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، وہ بھی آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ جوان کہتا ہے ہاں وہ کوئی غیر نہیں، وہ حسین کے بھانجے اول محمد کے لاشیں ہیں، اٹھاؤ ان جنازوں کو اٹھاؤ۔ ارباب ازا بنی اسد نے اول محمد کے جنازے اٹھائے۔ میرا سلام کربلا کی ماں زینب پر کہ جس نے اپنے بھیا کو بچانے کے لیے اپنی گودی اجاڑ دی۔ ارے میری اولاد رہے نہ رہے، میرا ماجایا حسین بچ جائے۔ حسین پر اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کیا، نہیں قربان نہیں کیا ہے ارباب ازا۔ عجیب فقرہ ہے جناب زینب کا، جب اول محمد ماں سے اجازت لے کر، ماموں سے اجازت لے کر میدان کارزار میں پہنچے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ماموں کو سلام کیا، جناب عباس اور امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچے، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا۔ لاشیں لے کر جب خیمے میں آئے، ذرا آپ سوچیں کیسا جواب دیا ہے زینب نے۔ لاشیں لے کے آئے تو زینب نے غور سے دیکھ کے کہا بھیا آپ کس کے لاشیں لے کے آئے ہیں؟ کہا بہنوں نے محمد کے لاشیں ہیں۔ کہا بھیا انہیں تو میں آپ کا صدقہ کر چکی ہوں، بھیا صدقہ واپس نہیں لیا جاتا۔ اللہ اللہ، شاید یہی وجہ تھی حسین پر اپنے لال کو قربان کرنے کے بعد ارے شہزادی زینب نے کبھی اول محمد کا ماتم نہیں کیا ہے، کبھی اول محمد پر نہیں روئی ہے۔ جب کسی نے اول محمد کا پرسہ پیش کیا تو زینب نے ایک ہی بات کہی، مجھے اول محمد کا پرسہ نہ دو، میرے بھیا حسین کا پرسہ دو۔ اللہ اللہ، نہیں روئی زینب۔ زندان شام سے رہائی کے بعد جب لٹا ہوا اسباب آیا، شہداء کے کٹے ہوئے سر آئے، بیویوں نے ماتم برپا کیا، سبے ماتم بچھی ہے۔ شام کی عورتیں سیاہ لباس میں اہل حرم کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئی ہیں، ایک ایک شہید کا سر آتا جاتا ہے، وارث کے سر کو لیتا جاتا ہے۔ قاسم کا سر آیا، فروا نے آغوش پھیلائی، میرے لال کلیجے سے لگا لوں۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے گود میں لے لیا۔ عباس کا سر آیا، بہن ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ حسین کا سر آیا، زینب نے آغوش پھیلا دی۔ ارباب ازا شام کی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب سب کا ماتم شروع ہو گیا، انہوں نے غور سے دیکھا 2
कहा बुढ़ी अम्मा आपका भी तो सब कुछ लूट गया है, आप बैठिए मैं आपको पुरसा देता हूँ। ज़ैनब बैठी, फितरत के तकाजे के मुताबिक सबसे पहले सैयद सज्जाद ने कहा ए अम्मा, ए बुढ़ी अम्मा, आपको ओनो मोहम्मद का पुरसा। ज़ैनब मसला से खड़ी हो गई, ए मेरे लाल मुझे ओनो मोहम्मद का पुरसा नहीं, मुझे मेरे भैया हुसैन का पुरसा दो। नहीं रोई अली की लाडी अपने बच्चों पर। हार बाबेजा तारीख में सिर्फ एक मंजर है जहां ओनो मोहम्मद की याद ने ज़ैनब को तड़पा दिया। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, सैयद सज्जाद ने ज़ैनब से कुछ दिनों के बाद कहा ए बुढ़ी अम्मा अब आप फूफा अब्दुल्ला के घर चली जाइए। ज़ैनब ने कदम घर से बाहर निकाला, अब्दुल्ला के घर आई। अब्दुल्ला घर में नहीं थे, ज़ैनब सहने खाना में बैठ गई। अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए, देखा एक ज़रीफा बैठी हो रही है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला कहते हैं ए बीबी तुम कौन हो जो मेरे घर में बैठ के रोई हो? तुम्हें मातम करना है, तुम्हें गिरिया करना है तो सज्जाद को जादू पुरसा दो। चेहरे पे पड़े हुए बालों को हटाया। ए मेरे वाली तुमने भी ना पहचाना? अरे मैं ज़ैनब हूँ। हाथों को जोड़ के कहा शहजादी यहाँ क्यों बैठी है? हुजरे में चलिए, बस कयामत गुजर गई। और बात ऐसा ज़ैनब जैसे हुजरे में दाखिल हुई तो नन्हे नन्हे बिस्तर नजर आए, तो नन्हे नन्हे मुसल्ले नजर आए। करबला से जब्त करती हुई मदीने तक आई थी ज़ैनब। ये मंजर देखा कलेजा पकड़ा, करबला का रुख किया। ए ओनो मोहम्मद जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा इन आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे। ओनो मोहम्मद के लाशें दफन हो गए, बनी असद खुल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। आगे कहते हैं ए सवार एक लाशा देख के आया हूँ, लेकिन वो कहने को लाशा है, कहने को लाशा है, लेकिन जिस्म इतना बोसीदा हो गया है, टुकड़ों में तब्दील हो गया है। सवार चीख मार के रोया, कहा उस लाशे को भी उठाओ, वो भी किसी गैर का लाशा नहीं, वो हुसैन के भतीजे कासिम का लाशा है। अल्लाह अल्लाह। देखिए इस मौके पर दुनिया में कमी न कीजिएगा, एक बेवा को उसके यतीम का पुरसा दे रहे हैं आप। हाँ वो माँ जिसका सहारा था बेटा, बुढ़ापे का सहारा। जनाबे कासिम करबला में आते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब करते हैं। रवायत में है कि जितनी देर जनाबे कासिम को रुखसत करने में हुसैन को लगी है किसी को नहीं लगी। जब भी कासिम कहते थे चचा इजाजत, गले में बाहें डाल के हुसैन रोते थे ए मेरे लाल तुम तो मेरे भैया की निशानी हो, तुम अपनी माँ का सहारा हो। तो कासिम पलट के कहते थे मुझे अम्मा ही ने तो भेजा है, मुझे अम्मा ही ने तो भेजा है। हार बाबे अज़ा। फिर एक मंजर अजीब है जहाँ जनाबे कासिम को लेकर जनाबे अब्बास जाते हैं। पहले उम्मे फरवा जनाबे अब्बास को बुलाती है, बुला के कहती है ए अब्बास मेरा भी कोई हक है ना तुम पर? कहाँ भाभी आप कहिए क्या कहना चाहती हैं, शहजादी बयान कीजिए। कहा मैंने तुम्हारे भाई के रुखसत होने के बाद कभी तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं की। ए अब्बास पहली और आखिरी तमन्ना है, करबला की माँ भी ख्वाहिश क्या कर रही है, तुमसे पहली और आखिरी ख्वाहिश है, शहजादी बयान कीजिए। कहा अब्बास मैं तुमसे कुछ नहीं तलब करती, बस मेरे लाल को हुसैन से मरने की इजाजत दिला दो। जनाब अब्बास ने कासिम का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। आगे कहते आका अरे मैं आपसे कुछ अर्ज करने आया हूँ। हुसैन ने आवाज दी अब्बास सब कहे ना, कासिम को मरने की इजाजत न दिलाना, ये मसला नहीं है, हम नहीं देख सकते कासिम को, हम भैया की निशानी को खाको खून में गलता नहीं देख सकते। कासिम फिर मायूस हो के आए। अब कहने के गोशे में बैठे हुए थे, माँ ने देख लिया, आवाज दी मेरे लाल क्या तुम मरने से डर रहे हो? कहा नहीं अम्मा मैं बार बार जाता हूँ, चचा मुझे वापस भेज देते हैं। मैं ये सोच के जनाब कासिम को कुछ याद आया, कासिम का एक तावीज़ बना था, तावीज़ खोला, पढ़ा, तबीयत शाद हो गई। हुसैन की खिदमत में लेके आए, भाई ने भाई की तहरीर को आंखों से लगाया, जाओ कासिम खुदा हाफिज। इस निराले अंदाज से हुसैन ने किसी को मरने के लिए नहीं भेजा जैसे जनाब कासिम को भेजा। घोड़े पर सवार करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम का गरीबान चाक कर दिया। कहा जाओ खुदा हाफिज। पूछने वाला पूछता है मौला आपने गरीबान क्यों चाक किया? आवाज दी यतीमों की निशानी है, शाह जालिम से यतीम समझ के
चिल्लाता रहा, चचा मदद के लिए ना आ सका। अजीजों, ये लाश भी अजीब अंदाज से हुसैन ने उठाई। अरे जनाजा उठाने के काबिल न था। हुसैन ने आबा बिछाई जिसमें कासिम के टुकड़ों को इकट्ठा किया। हाँ, एक पोटली बनाई, आवाज दी, फरवा तुम्हारा बेटा टुकड़ों में तब्दील हो गया। जनाब कासिम का मातम हुआ, बनी असद ने इस लाशे को दफना दिया। हाँ, अरबाब अदा फिर थोड़ी देर के बाद वापिस कत्लगाह में जाते हैं, वापिस आते हैं तो आप बनी असद बहुत क्रिया कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। सवाल पूछता है, आखिर तुम्हारी ये कैफियत क्यों है? कहा जी मंजर देख के आया, मेरा कलेजा गलने लग गया। ऐसे जवान को कत्ल कर दिया। कहा कैसे, कैसा है जवान? कहा मैंने इस जवान को देखा जो बहुत खूबसूरत है और यही कोई उम्र 18-19 साल की रही होगी इस जवान की, जिसके जिस्म पर सर भी नहीं है और उसके सीने में एक कारी जख्म भी है। तो ये सुनना था, सवार की चीखें निकल गई। कहा हाँ, इस जनाजे को भी उठाओ, ये किसी और का जनाजा नहीं, ये हुसैन के 18 बरस के कड़ियल जवान। इजाजत तलब कर रहा है। हुसैन कहते हैं ये अकबर, मैं मरने की इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन तुम पहले अपनी फूफी से इजाजत ले लो। कहा बाबा, मैं फूफी से इजाजत ले चुका हूँ, अब आप मुझे इजाजत दे दीजिए। ज़ैनब से कैसे इजाजत ली है अली अकबर ने, मुझे नहीं मालूम। हाँ, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं दूर से देख रहा था, कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी गिर जाता था, कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी गिर जाता था। और जब ये जवान निकलना चाहता था तो कुछ बच्चे थे जो दामन से लिपट जाते थे। अब जो अकबर खैमे से बाहर निकले तो ऐसा शोरे गिरिया बुलंद हुआ जैसे किसी भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकलता हो। जनाब अली अकबर निकले, निकलने के बाद बाप से इजाजत ली, बाप ने रुखसत किया। रुखसत करने के बाद अल्लाह को गवाह बनाया, परवरदिगार गवाह रहना, मैं उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे पैगंबर से मुशाबे था। अरबाब अज़ा किसी सवार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रवाना करने के बाद उसके पीछे हुसैन नहीं गए। ये वाहिद अली अकबर है, ताकि दुनिया ये न सोच ले कि हुसैन का कलेजा पत्थर का हो गया था। जनाब अली अकबर को जब रवाना किया है तो पीछे पीछे खुद चले हैं। जब पीछे पीछे चले तो जवान बेटे को किसी के आने की आहट महसूस हुई, मुड़ के देखा तो आने वाला कोई और नहीं था, 57 साल का बूढ़ा बाप था। बूढ़ा मोड़ के बाप के करीब आए, बाबा जब रुखसत कर दिया है तो पीछे क्यों आ रहे? अजीब तुल्ला कहा, साहिब औलाद का मजमा है, कलेजे पे हाथ रखे। हुसैन कहते हैं मेरे लाल, काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि बाप का दिल औलाद के लिए कितना तड़पता है। अकबर जाओ खुदा हाफिज, लेकिन जब तक सामने रहे मुड़ कर देखते रहना। जनाब अली अकबर मैदान में आए, आशीष हो। थोड़ी देर के बाद बाप को सलाम आखिर किया। हुसैन ठोकरें खाते हुए अपने बेटे के करीब पहुंचे तो देखा जवान बेटा अपने सीने पे हाथों को रखे हुए है। ए मेरे लाल, सीने पे हाथ क्यों? कहा बाबा नजर की हमें कलेजे में टूट गई है। सब्र अय्यूबी भी कांप उठा है करबला में। हुसैन ने वो काम अंजाम दिया है, बस आपके हवाले दो जुमले हैं। हुसैन ने आस्तीनें समेटी, जैसे ही आस्तीनें हुसैन ने समेटी, घुटना टेका, जनाब अली अकबर के जख्म हुसैन ने हाथ डाला। इधर मदीने में रसूल ने मजार छोड़ दी। नजब से अली आ गए, बकी से जहरा आ गई, हसन आ गए। आवाज दी हुसैन, ए मेरे लाल, मैं तेरा नाना रसूल बोल रहा हूँ। ए मेरे लाल, मेरी जबान का असर दिखा देना। अली की आवाज आई, मेरे खून का असर दिखा देना। सहरा ने आवाज दी, मेरे दूध की तासीर दिखा देना। ए भैया, मैं तेरी हौसला अफजाई के लिए आ गया। हुसैन की हिम्मत बढ़ी, लहजे की अभी पकड़ के निकालना ही चाह रहे थे। एक बार रसूल की आवाज आई, मेरे लाल ठहर जा, मेरे लाल ठहर जा। कहा नाना, जब आपने हौसला बढ़ा दिया तो रोक क्यों रहे हैं? कहा मेरे लाल एक लम्हे के लिए रुक जा। हुसैन रुके, रसूल की आवाज आई, अली
अरे जरा खड़े हो जाओ, सैयदा के चेहरे पर पर्दा कर लो। मेरा लाल हुसैन को काम अंजाम देने जा रहा है जो मेरी बेटी देख न पाएगी। अली उठे, सैयदा के चेहरे पर पर्दा किया, हुसैन ने नौसे की अनी निकाली, 18 बरस के करियल जवान का जनाजा निकला। हुसैन ने मरसिया बढ़ा, अरे जिंदगी पा जज़ाकल्लाह, खुदा इनामा से रहमत नाज़िल करे, आपको सिवाय हमें मज़मून करबला के कोई गम न दे। हार बाद अदा जनाब अली अकबर का लाशा दफन कर दिया, फिर गए, थोड़ी देर के बाद वापिस आए, आके कहते जवान एक लाशा देख के आया हूँ, अब तक जितने लाशें देखे थे उनके जिस्म पर सर नहीं थे, हमने फरात के किनारे एक लाशा देखा है जिस्म पर सर भी नहीं है, बदन पर बासु भी नहीं है। पर ये सुनना था सवा चीख मार के रोया का ये हुसैन के लश्कर का अलमदार अब्बास है, इसके जनाजे को उठाओ। पर ये सब ने इस जनाजे को उठाया, हाँ वो तारफा जो अहले हरम की धारस जिससे हुसैन को कुव्वत हार बाद ऐसा जनाब अब्बास जब इजाजत लेने के लिए आए, हुसैन ने अजीब चिल्ला कहा अब्बास तू तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था। कहा देखो बच्चे प्यासे हैं, पानी की कोई सबील करो। मशके सकीना ही वरात पे पहुंचे, पहुंचने के बाद मशके सकीना भरी, मशके सकीना भरने के बाद वापिस चले, दाहिने बाजू का वार हुआ, बाएं बाजू का वार हुआ, सर पे गुर्ज लगा। अब्बास ने आवाज दी मौला मेरा सलाम आखिर। हुसैन ने कमर पकड़ी, अलान इनकसर अज़हर वक़ल्लत हिलती, ए अब्बास तेरे मरने में मेरी कमर तोड़ दी अब्बास। अब चाहे चारा मसरूर हो गई। हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद का अब्बास हुसैन आया है, अब्बास हुसैन आया है। का मौला जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी, अब दुनिया से जाते वक्त की ख्वाहिश ये है कि आपकी ज़ियारत करूं। हुसैन ने आवाज दी अब्बास, हुसैन तो खड़ा है। का मौला मेरी एक आंख में तीर छुपा हुआ है, एक आंख में खून भरा हुआ है। हुसैन ने अबा के दामन से अब्बास की आंख का खून साफ किया। जब भाई ने निगाह भर के भाई को देखा तो बड़े भाई के दिल में भी एक तमन्ना कर दी, अब्बास इतनी मुद्दत गुजर गई कभी भैया नहीं कहा, एक बार तो भाई कह दो अब्बास, एक बार तो भाई कह दो अब्बास। अरबाब ऐसा जिस्म की सारी कुव्वतों को सर्व किया जनाब अब्बास ने, लेकिन माँ की वसीयत सामने आ गई। भाई ने कहा, फिर हुसैन ने इसरार किया, फिर अब्बास ने कोशिश की, भाई ने कह पाए। जब तीसरी बार अब्बास के लिए ये मंजिल आई, हुसैन ने कहा भैया एक बार तो भाई कह दो। एक बार खुदा ने आवाज गूंजी, मेरे लाल अब्बास मेरे गरीब हुसैन की तमन्ना पूरी कर दो। कहा ये आवाज किसकी? कहा ये अम्मा ज़हरा की आवाज है। हुसैन को अब्बास ने भाई कहा, रो बर्बाद कर गई, लेकिन उससे पहले वसीयत की थी अब्बास ने, मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। देखिए यही तो है ना, अब्बास ने इसलिए कहा था कि सकीना से मुझे शर्म आती, साहिब नहरुल मसाइब लिखते हैं, इसकी एक वजह और भी थी। अब्बास ने अपने लाशों को उठाने के लिए हुसैन से इसलिए मना किया था, कहा था आका अगर आप मेरा लाशा उठाएंगे तो बेदीनों को पता चल जाएगा कि अब्बास मर गया तो ज़ैनब की चादर खतरे में पड़ जाएगी। मेरा लाशा न उठाना, आलम लेके चले, बच्चों की आंच टूट गई। मैं मसाइब खत्म कर देता जनाब अब्बास के, लेकिन एक जाकिर ने मसाइब पढ़े, शर्म ख्वाब में देखा जनाब अब्बास आए हैं, आगे कहते हैं जाकिर तूने मेरे मसाइब पढ़े, लेकिन करबला में जो सबसे सख्त मुसीबत मुझ पर गुजरी वो तूने बयान नहीं की। जाकिर कहता मौला करबला में सबसे बड़ी मुसीबत आपके लिए यही थी ना कि आपके हाथ पहले कलम हुए, सर का बुर्ज बाद में लगा, आप जब घोड़े से जमीन पे आए तो मुंह के बल आए। कहा नहीं मैं सवाल करता हूँ जाकिर ये बता कि इंसान के जिस्म पर सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा है? जाकिर कहता है मौला इंसान के जिस्म में सबसे नाजुक हिस्सा उसकी आंख है। कहा इंसान की आंख में अगर कोई जर्रा पड़ जाए तो फितरत क्या होती है? कहा फौरन इंसान का हाथ उसकी आंख पे पहुंचता है। मेरा मौला चीख मार के रोया, चीख मार के रोया। कहा जाकिर करबला में साहिबों ने पहले मेरे हाथ काटे, उसके बाद एक तीर मारा जो मेरी आंख में चुभ गया।
मैं शिद्दत तकलीफ से तड़पने लगा, मेरे हाथ मौजूद नहीं थे जो मैं तीर आंखों से निकालता। काज़ातुर, अरे मैं घोड़े पे बैठा था, मैंने अपने सानू बुलंद किए, सर को झुकाया कि तीर को सानू में दबा के निकालूं। अरे अभी मैंने सर को झुकाया ही था कि जालिम का गोश्त मेरे सर पर पड़ा और मैं मुंह के बल जमीन पर आ गया। और बनी असद ने इस लाशों को दफना दिया। फिर मैदान में जाते हैं, थोड़ी देर के बाद पलट के आए, इस सवार एक लाशा देख के आया हूँ। का लाशे की कैफियत क्या है? का लाशा पामाल है, लाशा पामाल है, जिसमें जगह जगह जख्म है, तीर पेवस्ता है। अरबाब रजा तो ये सुनना था कि चीख मार के जवान रोया, हाँ तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। अरे तुम जिसका लाशा दफनाने के लिए आए थे, यही नवाज रसूल का जनाजा है, उठाओ, यही हुसैन का लाशा है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने थे आप तसव्वुर करें। एक इंसान और नीलम से एक बैत में नस्ब किया है 1900 जख्म, तने चार पर ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है ख्वाब पर। अल्लाह अल्लाह, इतने जख्म हुसैन के जिस्म पर। और जनाब ज़ैनब जब 11वीं मुहर्रम को चली है, जब हुसैन के लाशे के करीब ज़ैनब की सवारी पहुंची, ज़ैनब ने अपने को ऊंट की पीठ से गिराया और इस गिरने को भी इमाम ज़माना ने ज़ियारत इलाहिया में ये कह के सलाम भेजा, हमारा सलाम करबला में हमारी दादी ज़ैनब पर जो ऊंट की पीठ से ऐसे गिरी जैसे मेरा दादा अब्बास घोड़े की पीठ से गिरा था। अल्लाह अल्लाह, मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार, ए मुंतखब हुसैन, ए मेरे मौला, आपने अजीब अंदाज का सलाम भेजा है। अरे आपका दादा जब घोड़े से गिरा था तो उसके हाथ न थे, मुंह के बल गिरा था, लेकिन आपकी जद्दा के हाथ तो थे। अजब मेरी जो आवाज है, हाथ तो थे लेकिन पसे गर्दन में मुंह थे। ज़ैनब घुटनियों चल के हुसैन के लाशे के करीब आती है, लाशे का तबाद शुरू करती है। सज्जाद ने पुत्री को देखा, ए पुत्री अम्मा लाशे का तबाद क्यों कर रही है? कहा मैं तुम्हारे दादा के लाशे का तबाद नहीं कर रही हूँ मेरे लाल, अरे मैं अम्मा ज़हरा की एक वसीयत पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ। कहा क्या दादी ने वसीयत की थी? कहा मेरे लाल, अरे तुम्हारी दादी ने कहा था ज़ैनब करबला में जब मेरा लाल कत्ल कर दिया जाए तो हुसैन के जिस्म पर मेरी तरफ से एक बोसा दे देना। ए भैया, ए मेरे लाल, अरे मैं तबाह करके देख रही हूँ जिस्म पे कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां जख्म ना हो और ज़ैनब बोसा दे दे। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन जब करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, रसते आखिर के लिए हुसैन आए, बस अरबाब रज़ा ज़हमत तमाम, परवरदिगार आपके आंसू को रुमाले ज़हरा में जगह इनायत करे। बच्चन लम्हे और आपकी ज़हमत तमाम, हमारा मौला रुखसत हो रहा है। अरबाब रज़ा ज़ैनब को अपने भैया की रुखसत बड़ी पसंद है और ज़ाकिरों से फरमाइश है ज़ैनब की, मेरे भैया की रुखसत जरूर पढ़ो। एक शफाती ज़ैनब आइए दोराई में देखिए 14 सदी बाद ये मजलूम करबला का माँ दाएं तरफ देखा, आवाज भी रब्बा, क्या हुसैन को रुखसत न करोगे? ए मेरे लाल अली अकबर क्या दादा को रुखसत न करोगे? खाने का पर्दा हटा, माँ जाए बहन खाने से बाहर आ गई। ए भैया अब्बास नहीं तो ज़ैनब पे है, अली अकबर नहीं तो ज़ैनब पे है। अरे ज़ैनब ने हुसैन को रुखसत किया। थोड़ी देर के बाद अजीब क़यामत गुजरी। ए मेरे लाल सज्जाद, अरे देखो कैसी सदाएं गूंज रही है, क्या क़यामत गुजर गई। ए पुत्री अम्मा खाने का पर्दा हटाओ, खुदा किसी बेटे को बाप को सालम में न दिखाए। तो सज्जाद ने देखा, सर से अमामा फेंका, बाबा का कटा हुआ सर, अस्सलाम अलैका या अब्बा, ए पुत्री अम्मा मैं यतीम हो गया। और बाब रज़ा बनी असद ने काबिला, बनी असद के काबिले ने हुसैन के लाशे को दफन कर दिया। जब हुसैन का लाशा दफन हो गया, एक बार सवार ने घोड़े को लगाई, जाना चाहता था, बनी
بس یار